السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد ذاکر حسین۔ مشن اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ساتھیوں، آج یہ ہمارا 13واں کلاس ہے۔ اس سے پہلے کے 12 کلاس میں آپ نے بہت اچھے سے اردو پیڈاگوجی کے کلاس کیے اور سب کچھ سمجھا۔ اگر ابھی تک آپ نے ان تمام کلاس کو نہیں دیکھا ہے، نہیں سمجھا ہے، تو آپ پہلے ان تمام کلاس کو کر لیجئے، اس کے بعد اس کلاس پر آئیے گا، تاکہ جو بھی پوائنٹ پہلے پڑھا چکا ہوں میں وہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور اس سے جوڑ کر آپ کو معلوم ہی ہے کہ کسی بھی کلاس میں پہلے جو شروع کیا جاتا ہے وہ بیسک سے، اس کے بعد اس سے جوڑ کر آگے پڑھایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے کلاس میں ہے، آپ پہلے ان تمام کلاس کو دیکھیے، اس کے بعد آگے کی کلاس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ نہیں بھی دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، لیکن جب وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، کسی بھی چیز کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو ساتھیوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں، یہ ہے چیپٹر، ہمارا 5واں چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے ہمارا 4 چیپٹر مکمل ہو چکا ہے، اور سب کے یعنی ہر چیپٹر پر ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ ابھی تک ٹیسٹ میں شامل نہیں ہوئے ہیں وہ پیڈ گروپ میں شامل ہو کر ٹیسٹ میں ضرور شامل ہوئیے، تاکہ آپ کا پورا فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہم آج کی کلاس میں کیا پڑھنے والے ہیں؟ قواعد کا کردار، اور قواعد کو کتنے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھنے والے ہیں۔ 2 طریقہ ہے، استقرائی طریقہ اور استخراجی طریقہ۔ ساتھیوں، اس چیپٹر کو آپ VVI چیپٹر بہت ہی چھوٹا ہے، ایک ہی کلاس میں چیپٹر مکمل ہو جائے گا، اور بس یہ 2 ٹاپک ہے اس میں، اور بہت ہی اہم چیپٹر ہے یہ، اس لیے اس کو آپ لوگ اسکپ نہیں کیجیے گا اور اس کو دھیان سے پڑھیے گا۔ استقرائی کیا ہے اور استخراجی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے یہ سوال کہ یہ کون سا طریقہ ہے، استقرائی ہے یا استخراجی ہے، یا پھر آپ کو بہت لمبا چوڑا گفتگو کر دے گا، یعنی کہ ایک پیراگراف دے دے گا، ہاں، اور اس میں پوچھے گا کہ اگر اس طرح سے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے، ایک طریقہ دے دے گا، تو وہ کون سا طریقہ ہے، استخراجی ہے یا استقرائی ہے؟ تو ہم اس چیز کو آگے سمجھیں گے، اس کے بعد پھر ٹیسٹ کے ذریعے ہم سوال حل کریں گے۔ دیکھیے، قواعد کا کردار کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا پڑھیں گے۔ قواعد کا کردار، قواعد کی تدریس کے طریقے کیا کیا ہے، اور ان طریقوں میں 2 طریقہ ہے، استقرائی طریقہ اور استخراجی طریقہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ایچ سویٹ نے کہا تھا کہ گرامر از دا پریکٹیکل انالائسس آف اے لینگویج اینڈ اٹس ایناٹومی۔ کسی بھی زبان کا جو ایناٹومی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بناوٹ ہے، وہ کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، گرامر کیا ہے، اس کے لیے ایک پریکٹیکل کیا ہے، انالائسس ہے، تجزیہ ہے یہ پریکٹیکل کا۔ ٹھیک ہے، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قواعد پریکٹیکلی استعمال کیا جائے، یہ چیز کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے تراکیب اور ساخت سے واقفیت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بالخصوص جب ہم دوسری زبان سیکھ رہے ہوں۔ دوسری زبان سے مراد کیا ہے؟ مادری زبان کے علاوہ کوئی بھی زبان اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو وہاں ہمیں قواعد سیکھنا پڑتا ہے، قواعد سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کے قواعد کو نہیں سمجھیں گے زبان کو اچھی طرح سے ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہماری مادری زبان جو بھی ہے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا الگ ہو سکتا ہے، ہمارا الگ ہو سکتا ہے، تو اس زبان کو چھوڑ کر کے اگر ہم دوسری زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کے قواعد کو جاننا ہوگا، اس کے اصول کو جاننا ہوگا، اس کے رول کو جاننا ہوگا، ہے نا۔ کسی بھی زبان کو اگر ہمیں سیکھنا ہو، جب خاص طور سے وہ جب دوسری زبان ہو تب۔ اب آپ کو پہلی زبان اور دوسری زبان، پہلی زبان اور دوسری زبان، یعنی کہ مادری زبان اور پھر دوسری زبان، مادری کے علاوہ جو دوسری زبان ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ پھر پچھلے کلاس کو کیجئے، وہاں بہت اچھے سے شروع سے بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھ میں آ گیا۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا سیکھنا ہوگا؟ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس زبان کو کیسے بنایا گیا ہے، یعنی اس کی ساخت کیا ہے، اس کو ہم کیسے پروتے ہیں، یعنی کہ کیسے ہم جملہ بناتے ہیں، کیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، ان تمام چیز کو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ خاص طور سے یہ ہوتا ہے کب؟ جب ہم دوسری زبان کو سیکھتے ہیں تب۔ قواعد ان بنیادی اصول اور ضوابط کا مجموعہ ہے جو کہ زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو قواعد کیا ہے؟ اصول کا مجموعہ ہے، ضابطہ کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ رول بتایا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ رولز اس میں بتائے گئے ہیں، اور رول کا یہ کیا ہے؟ مجموعہ ہے، ذخیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماہر لسانیات یعنی زبان کے جو ماہر ہے، قواعد کو
मुख्तलिफ अज्जा में तकसीम करते हैं, मसलन अस्वात, सर्फ, नहू और मानियात। एक मरतबा आपसे इस पर बात हो गई हुई है। अस्वात का मतलब क्या है? आवाज से है, ये सौत से। इसमें हुरूफ तहज्जी से हम लोग बहस करते हैं। किससे? हुरूफ तहज्जी के बारे में इसमें बात करते हैं, अलिफ से ये तक। उसके बाद जब हम इल्म सर्फ की बात करते हैं तो इसमें लफ्ज की बनावट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इल्म नहू में हम क्या करते हैं? जुमलों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हुरूफ तहज्जी यानी हर्फ की बात हुई, हर्फ से मिलकर लफ्ज बनता है, तो इल्म सर्फ में हम लफ्ज की बात करते हैं। फिर लफ्जों से मिलकर के क्या बनता है? जुमला बनता है, तो इसे हम इल्म नहू में बात करते हैं। और मानियात का क्या मतलब होता है? मानियात का मतलब यह है कि गुफ्तगू के बारे में हम इसमें बात करते हैं, यानी कि हम किस तरह से गुफ्तगू करेंगे, कि कौन सा जुमला कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ये चीज है। तो क्या कहते हैं, जबान के जो माहिर है वो क्या कहते हैं कि कवायद को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें से अस्वात है यानी हुरूफ तहज्जी, इल्म सर्फ, इल्म नहू और मानियात है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम दुनिया की तमाम जबानों की नशोनुमा पर गौर करें तो हम पाएंगे कि जबानें पहले वजूद में आई, ग्रामर के उसूल बाद में बनाए गए और उनके बनाने का मकसद जबान की असल सूरत को कायम रखना है। ये चीज आपको पहले या दूसरे चैप्टर में भी बताया गया था कि जबान की जो बुनियाद पड़ी वो कैसे पड़ी और कवायद का क्या किरदार है, उसमें बताया गया कि जबान क्या है कि मुख्तलिफ लोगों के जो तरसील का वसीला है ये जबान है। जब शुरू जमाने में लोग आपस में बात कर रहे थे, कैसे बात कर रहे थे? चीजों को दिखा करके बात कर रहे थे। उसके बाद क्या आया? अलामत के जरिए बात करने लगे, फिर आवाज देने लगे और मुख्तलिफ तरह की आवाजें होती थी, उनसे अपनी बात को, एक दूसरे की बात को लोग समझते थे। बाद में यही आवाज क्या है? एक जबान की शक्ल ले ली, ठीक है। तो यही चीज कहा गया है कि पहले तो जबान आई, बाद में उस जबान को बचा कर रखने के लिए अब चूंकि अब नए लोग आएंगे, जब नस्ल बढ़ेगी तो नए लोग आएंगे और फिर नए लोग नए तरीके से उस जबान को बोलेंगे, इसलिए बाद में क्या हुआ कि ग्रामर की बुनियाद पड़ी और ग्रामर या उसूल लाया गया ताकि उस जबान की बका रहे, यानी वो जबान बाकी रहे और उसको उसी तरीके से जैसे पहले बनाया गया उसी तरीके से लोग, आने वाले लोग भी, आने वाली नस्ल भी उसको कायम रखे। तो इसलिए ग्रामर की बुनियाद पड़ी। कवायद की जरूरत उस जबान को सीखने के लिए पड़ती है जिससे हम बिल्कुल ही नाआशना, यानी जिस जबान को हम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं उस जबान को सीखने के लिए हमें कवायद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिस जबान को हम जानते हैं यानी मादरी जबान को हम जानते हैं, उस जबान को सीखने के लिए कवायद की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके सीखने के लिए न किताब की जरूरत पड़ती है, न किसी मुअल्लिम की, न किसी सामान वगैरह की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसे तो हम खुद ही सीख लेते हैं। लेकिन कवायद की जरूरत वहां पड़ती है जब हम नई जबान सीखते हैं जिस जबान को हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो उस जबान को सीखने के लिए हमें कवायद की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब कवायद की तदरीस के दो तरीके हैं। कवायद की तदरीस का मतलब है कि कवायद पढ़ाने के दो तरीके हैं। कौन कौन तरीका है? पहला है इस्तक़राई तरीका और दूसरा है इस्तिखराजी तरीका। तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि इस्तक़राई तरीका क्या है और इस्तिखराजी तरीका क्या है। देखिए, इस्तक़राई तरीका को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड बोलते हैं और इस्तिखराजी तरीका को डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आगमन विधि और एक होता है निगमन विधि। क्या होता है? एक होता है आगमन विधि और एक होता है निगमन विधि, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। इस्तक़राई तरीका क्या है? ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है। नया तरीका कौन सा है? इस्तक़राई तरीका। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि क्या है ये? नया तरीका है। क्या है? नया तरीका या जदीद तरीका है। कौन है? इस्तक़राई। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि नया तरीका, कवायद की तदरीस के जो दो तरीके हैं उनमें से नया तरीका या जदीद तरीका कौन सा है? तो इस्तक़राई तरीका है। अब देखिए, इसके तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद के उसूल और ज़वाबित अखज़ कराए जाते हैं। बहुत ही इस्तेमाल करके कवायद की तालीम दी जाती है, ठीक है। इसके तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम दी जाती है। मिसाल के इस्तेमाल से या निसाबी कुतुब में असबाक से मिसालें लेकर सवाल जवाब के जरिए कवायद के उसूल और ज़वाबित अखज़ किए जाते हैं। तो पहले क्या होता है? बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है। बाद में क्या करते हैं? उसूल बताते हैं। पहले क्या होता है? पहले मिसाल दिया जाता है,
समझाया जाता है, पहले मिसाल दिया जाता है, ठीक है, और बाद में क्या दिया जाता है, बाद में उसूल दिया जाता है, उसूल दिया जाता है, उसूल, बाद में उसूल दिया जाता है। ये किस में हो गया, ये इस्तिक़राई तरीक़ा में, पहले मिसाल दिया जाता है, बाद में उसूल दिया जाता है। ये किस में हो गया, इस्तिक़राई तरीक़ा में, ठीक है। तारीफों के मकाम पर कवायद के अमली इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। तारीफों के मकाम पर यानी कि किसी भी चीज़ की तारीफ याद करने की जगह पर उसका जो इस्तेमाल करके सिखाने पर जोर दिया जाता है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, बल्कि रटना विधि इसमें नहीं है, ठीक है। बच्चों को रटाया नहीं जाता है, बल्कि प्रैक्टिकल करके इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिखाने की कोशिश की जाती है। यानी यह तरीक़ा मिसालों से उसूल की तरफ है। मैंने पहले कहा, ये पहले मिसाल दिया जाता है, बाद में क्या होता है, उसूल दिया जाता है, और मालूम से नामालूम की तरफ, यानी जो चीज़ बच्चों को मालूम है, बच्चों के पास जो साबिका मालूमात है, वहाँ से जोड़ करके नई मालूमात बच्चों को दी जाती है, ठीक है, जो कि नफ्सियात के ऐन मुताबिक है और तलबा की दिलचस्पी भी बरकरार रहती है। तो ये क्या चीज़ है इसमें, अगर बच्चों को हम क्या ऐसे पढ़ाते हैं कि पहले से जो चीज़ उसे मालूम है, पहले उससे हम बात करें उसके बारे में, फिर उस चीज़ से जोड़ करके नई चीज़ को सिखाएं, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है इस्तिक़राई तरीक़ा में। बिल्कुल इसके मुखालिफ कौन सा है, इस्तिख़राजी तरीक़ा। अब देखिए, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आगमन में क्या होता है, पहले मिसाल दिया जाता है, यानी क्या करते हैं, यह तरीक़ा मिसालों से उसूल की तरफ, पहले मिसाल देते हैं और उस मिसाल के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक नया रूल बनाते हैं, नया उसूल बनाते हैं। और फिर इस्तिख़राजी तरीक़ा में क्या करते हैं, पहले ही हम उसूल बता देते हैं बच्चों को। जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, मैथमेटिक्स ज़्यादातर इस्तिख़राजी तरीक़ा पर होता है। पहले हम सारा का सारा फार्मूला दे देते हैं और उसमें क्या करते हैं, बाद में हम कहते हैं कि अच्छा इस फार्मूला के ज़रिए ये हमारा क्या होगा, हमारा हल निकलेगा, ठीक है। हमारा हल क्या निकलेगा, फार्मूला दे देते हैं, उसके बिना पर हमारा हल निकलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, साइंस में जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, पहले हम चीज़ों को समझा देते हैं, ठीक है, पहले हम चीज़ों को समझा देते हैं। अगर कैसे कि अगर हमें बच्चों को क्या करना है, सेल पढ़ाना है, तो पहले हम मुख्तलिफ मिसालों से समझा देंगे। जैसे घर की मिसाल लेते हैं कि एक घर है, उसमें बहुत सारी ईंट लगी हुई है, ठीक है, तो छोटा छोटा ईंट जिस तरह से लगा हुआ है, उस तरह से सेल में क्या होता है, एक सेल होता है, और इंसान के उज़ू में बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं। इस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं। तो ये क्या होता है, इस्तिक़राई तरीक़ा होता है, ठीक है। तो पहले उसमें क्या होता है, रूल दिया जाता है, और बाद में फिर क्या करते हैं हम लोग, मिसाल। ये होता है इस्तिख़राजी तरीक़ा में। इस्तिख़राजी तरीक़ा में क्या होता है, पहले उसूल दे दिया जाता है, पहले फार्मूला दे दिया जाता है, बाद में उसको मिसाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, हम देख लेते हैं इस्तिख़राजी तरीक़ा को। यह कवायद की तदरीस का रिवायती तरीक़ा है। इसके तहत क्या किया जाता है, तलबा को पहले तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं। मैंने कहा मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यही होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि पहले हम फार्मूला दे दिए, उसके ज़रिए से क्या करते हैं, हम उसका हल निकलवाते हैं। तो पहले तारीफ़ दे देते हैं और उसूल रटवाए जाते हैं। ऐसे दूसरे सब्जेक्ट में भी असातिज़ा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उनका इस्तेमाल कराया जाता है। बच्चे बिला फहम रटे जाते हैं और अमल इंतहाई बोरियत और बोझ वाला होता है। तो ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में हमें नहीं करना है, किसी भी मजमून के साथ ऐसा नहीं करना है कि पहले हम उसको उसूल रटवा दें और रटवाए बगैर समझाए हुए रटवाए। ये तरीक़ा सही नहीं है, इसी को इस्तिख़राजी तरीक़ा कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका इखराज ज़रूरी है, यानी निकालना ज़रूरी है, ठीक है। उर्दू वाले समझ गए होंगे कि इखराज का मतलब क्या होता है, खारिज करना, निकालना। तो ये चीज़ है। जब बच्चों का एडमिशन जब कट जाता है मदरसे में, तो बोलते हैं बच्चों का इखराज कर दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। तो इस इस्तिख़राजी तरीक़ा का इखराज ज़रूरी है, ठीक है। ये अमल क्या होता है, इंतहाई बोरियत वाला होता है और बोझ वाला होता है। बच्चे ग्रामर या कवायद की नाम से नफरत करने लगते हैं। देखिए, अब अगर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, उर्दू ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो दो तरीक़ा है, एक तो इस्तिक़राई तरीक़ा है और एक इस्तिख़राजी तरीक़ा है। अब हम पहले क्या करें, अगर उर्दू कवायद ही पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को पहले तमाम चीज़ें समझा दें कि इसमें ये होता है, ये होता है, इस तरह से जुमला बनाया जाता है, अगर ऐसे बनाएंगे तो गलती हो जाएगी। अब बाद में बताया कि इसका ये रूल है,
ठीक है। तो वो चीज़ अच्छे से समझने लगेगा प्रैक्टिकल के जरिए। लेकिन हम पहले ही उसको कवायद दे दें बोझ सा और उसको बोले कि पहले रट जाओ बाद में उसको समझाते हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका नामालूम से मालूम की तरफ होता है, बाद में बहुत ही आसान होता है, ये बात सही है। लेकिन जब शुरू में ही बच्चे नहीं पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे तो बाद में क्या आसान होगा। इसमें क्या करते हैं, मिसाल उसूल से मिसाल की तरफ चलते हैं, जो कि तालीमी और बच्चे की नफ्सियात के बिल्कुल मुखालिफ है। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक की क्या है। हिंदी में देखिए एक है आगमन और एक क्या है निगमन, ठीक है। निगमन, आगमन को आप छोड़ दीजिए, निगमन को देखिए। निगमन नी से है ना, और नियम भी नी से है, ठीक है। तो निगमन में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है। निगमन में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है और आगमन में बाद में नियम बताया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि पहले किस में नियम बताया जाता है, निगमन में। यानी कि एक होता है इस्तिक़राई और होता है इस्तिख़राजी। तो इस्तिक़राई किसको कहते हैं, आगमन विधि को कहते हैं, आगमन को। और इस्तिख़राजी किसको कहते हैं, इस्तिख़राजी किसको कहते हैं, निगमन को। तो इस्तिख़राजी में पहले नियम ही बता दिया जाता है, बाद में उसको समझाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो आगमन और निगमन हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगमन की उर्दू इस्तिक़राई है, इंडक्टिव है, और इस्तिख़राजी का क्या है, डिडक्टिव है, यानी निगमन है। समझ में आ गया। तलबा को कवायद के सबक अलग से न दिए जाए, बल्कि उन्हें जबान के असबाक से ही मरबूत कर दिया जाए। बच्चों को कवायद रटने के लिए या कवायद का सबक याद करके लाने के लिए नहीं कहा जाए, बल्कि ऐसा सबक दिया जाए, ठीक है, किताब से ही, या जो वो उसकी किताब है, जो सिलेबस है, उसमें ही ऐसा सबक दिया जाए कि उसमें वो कवायद के उसूल को देखे समझे। कवायद की ज़बानी मशक़ें तहरीरी मशक़ों के मुकाबला ज़्यादा कराई जाए। जैसे हमने कह दिया कि अब अलम एक चीज़ है, या इस मारफा की बात करें हम, इस मारफा को क्या करना है, समझना है, इसको रट करके ले आना है। तो ये चीज़ नहीं करना है, बल्कि इस मारफा की तारीफ लिखवाने के बजाय उसको इस तरह से बात करें कि मुख्तलिफ मिसाल दें, ठीक है। जैसे अगर हम कह दें कि गाय, बैल, ठीक है, जानवर, इसमें क्या क्या है, इसमें कौन सा इसम मारफा है, तो अब उसमें ये समझ में आएगा कि उसको गाय और बैल क्या है, इसम मारफा है, जबकि जानवर क्या है, इसमें नकरा है। ये चीज़ समझ में आएगा। तो उसको रटवाने से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली कर करके समझा करके पढ़ाया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज़ कहा गया है। बच्चे की इनफरादियत, जमात के तनु और दिलचस्पी का लिहाज रखना कवायद की तालीम में निहायत ज़रूरी है। जमात में कितने स्टूडेंट्स हैं उस हिसाब से, और कितनों की दिलचस्पी हो रही है उस हिसाब से कवायद को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। कवायद के मश्क का वक्फा 10 मिनट तक महदूद हो, बिलखुसूस छोटी जमातों में जहां तलबा ज़्यादा देर तक तवज्जह मरकूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट, वो क्या है, प्राइमरी सतह की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्राइमरी सतह पर क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेनी चाहिए कि घंटों 2 घंटों का क्लास ले रहे हैं आप, तो ये कवायद के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कवायद के मश्क का क्लास जो है वो 10 से 15 मिनट हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो हमें उम्मीद है कि ये इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ तमाम टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। तो इसमें 2 चीज़ें ही थी, एक इस्तिक़राई तरीक़ा और एक इस्तिख़राजी तरीक़ा। इस्तिक़राई तरीक़ा को आगमन विधि कहते हैं, और एक होता है इस्तिख़राजी तरीक़ा। इस्तिख़राजी तरीक़ा को क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। और आपको मालूम है निगमन का मतलब नियम, इसमें पहले क्या होगा, नियम आएगा, और बाद में क्या होगा, मिसाल आएगा। और इसमें क्या है, इस्तिक़राई में क्या होगा, पहले मिसाल आएगा, बाद में क्या होगा, नियम बताया जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यही था आज के क्लास में। अगर आपको इस क्लास का टेस्ट देना है